ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ, ਸਮਾਧੀ, ਪਰਮ ਰਸ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਤਮਾਮ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੇ। ਮਹਾ ਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਸ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਿਰਭੈ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਨ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਛਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਪਲਟਾ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
कबीर कहते हैं मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिसते कोई चले ना। कहते रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म दा मार्ग ही मैनू उजड़िया होया दिखाई देंदा है। इस वास्ते बेशतर चर्च सुनने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है, और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन, इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारे इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा, उजड़िया होया। चलिया सी किसी वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाने वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल है इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उहनूं भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते मेरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा है। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा, इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आया है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये दो तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नू भी एक करता है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करता है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहता है चले सन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए, रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म का। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कारण ये रास्ता पहाड़ी रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है, चाहे सुरत करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है। धर्म का मार्ग है सुरत नूं उच्चा करना। छाया
दुनियावी सुख ते जमीन ते भी मिल जाएंगे, क्योंकि दरखत की छां जमीन ते उच्चा उठण की लोड़ नहीं। धनवान बनन लई लाजमी नहीं है कि कोई संतोखी भी बने। ਧੀਆਂ पुत्र की प्राप्ति करने लई लाजमी नहीं कि कोई जप तप भी करे। ਧੀਆਂ पुत्र ते पशु पक्षियां दे भी आउंदे ने, औलाद ते उन्हां दी भी आउंदी है। सार कितावली का करता कहता है, निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। रब्बी ज्ञान तो बिना मनुख की की भुकत है, कुछ भी नहीं। तो खैर मैं अर्ज करा, मनुख के प्राणों की प्यास तो ऐसी है कि ऐसा सुख मिले जिहड़ा दुख दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। ऐसा जीवन मिले जो मौत दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। ऐसा सुहप्पण मिले जो करूपता दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। और ऐसा नफा झोली दे च पवे जो नुकसान दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। मैं फिर अर्ज करा, सुख पदार्थों तो भी मिल जाता है, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। सुख परिवार तो भी मिल सकता है, आनंद निरंकार तो मिलेगा। और आनंद की है, ये जो मनुख के प्राणों की प्यास है, ऐसी जिंदगी मिले जो मौत दे च ना बदले, ऐसी जवानी मिले जो बुढ़ेपे दे च ना बदले, ऐसा सुख मिले जो दुख दे च ना बदले, ऐसी इज्जत मिले जिहदे थल्ले बेइज्जती बिल्कुल ना होवे, ऐसियां खुशियां मिलन जिहदे पिछे गम बिल्कुल ना होवे। बस इसे नूं आनंद कहते हैं। आनंद दे च की है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर कहाँ जिथे मिरत ना जन्म जरा, जमना नहीं है, मरना नहीं है, बुढ़ेपा नहीं है, इस तरह की तर्ज जिंदगी नहीं है उत्थे। खैर मुख्तसर हुण अर्ज करा, आनंद की प्राप्ति का वसीला जप। ते जप उसनूं कहंदे ने, ये रसना किसी एक शब्द नूं बार बार रटन करे, बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये मंत्र उतना ही आउंदा है, करीबन करीबन जितनी देर दे च असीं श्वास ग्रास लेंदे हैं, बस उतनी इसकी जो है गति है, उतनी च अपने आप पूरा हो जाता है। इनू श्वास ग्रास दे च पूरा नहीं करना, ये आपे ही पूरा हो जाता है उतने च। वाहिगुरु वाहिगुरु। इस्लामी मंत्र भी ऐसा है, अल्लाह हो, इसे च पूरा हो जाता है। मैं देखा सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाह हो। बिल्कुल गति यही रही है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लेंदा है, तो वाहिगुरु वाहिगुरु पूरा हो जाता है। इसनू रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा ये तो पुनरुक्ति है, ये रेपिटेशन है, एवं बार बार दुहराई जाओ बच्चों की तरह। मैनू एक बड़े सियाणे बंदे ने तो दिल्ली कह भी दिता सी, कहने लगा गैनी जी गुरु ग्रंथ साहब दे रेपिटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहन लगे, मैं थोड़ियां दो चार नज़मां पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनिया ने किसी को, तुसी कवि दिमाग रखते हो तो इतना तो थानू पता होगा कि पुनरुक्ति दोष है, रेपिटेशन साहित्यिक दुनिया दे दोष है। मैं कहा होवेगी दोष, साहित्य ने मन लिया होगा, साहित्यकारा ने मन लिया होगा, परमात्मा नहीं मनता, प्रकृति नहीं मनती, मैं भी नहीं मनता कि पुनरुक्ति दोष है। अजे तो मैं कुछ होर कहना सी, कहने लगा गैनी जी थोड़ी कथा च भी मैनू पुनरुक्ति दिखाई देती है, रिपीटेशन। और कहने लगा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे एक शब्द दे जिहड़ी गल है
दूजे तीजे च भी हुई है, चौथे पंजवें च भी हुई है। और मैनू कहन लगा मुद्दतां तो थानू सुन रहा, तुसीं भी घूम फिर के उत्थे ही आ जाते हो। पुनरुक्ति, रेपिटेशन, ये तो दोष है। मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, प्रकृति नहीं मनती, परमात्मा नहीं मनता, मैं नहीं मनता। मैं कहा पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है, जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कहा देखो एक श्वास हुण तू अंदर ले गया तो हुण एक बाहर आया, हुण मुड़ के अंदर ना ले जाए तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना, एक कोई दफा ले। नब्ज बार बार चलती है, दिल बार बार धड़कता है, श्वास ग्रास बार बार चलते हैं। पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आउंदा है, रात बार बार आउंदी है, पानी बार बार पीने आ, रोटी बार बार खाने, एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है, सवेरे खा ली, दोपहरे खा ली, शामी फिर खा रहे हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह की बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा।